Now today we'll start with chapter number 1, that is computer memory. In this chapter, we will learn about computer memory, memory storage, units of memory and types of memory. ठीक है, इस चैप्टर में हम अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे मेमोरी के, यूनिट्स पढ़ेंगे मेमोरी। ठीक है, now let's start with the chapter that is introduction. One of the major advantage of computer is its storage capacity, when a huge amount of information can be stored. In fact, inside the computer, there are different storage areas where it keeps data or information permanently or temporarily while working. This storage area is known as memory. ठीक है, कंप्यूटर की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि हम इसमें अपनी जितनी मेमोरी चाहते हैं स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कैपेसिटी होती है कि हम जितनी भी ज्यादा, ठीक है, हम बड़ी फाइल भी रख सकते हैं, बड़ी बहुत ज्यादा लार्ज फाइल भी इसके अंदर रख सकते हैं और स्मॉल फाइल, ठीक है, और ये बहुत टाइम तक इसमें स्टोर्ड रहती है। ठीक है, इसे कहते हैं हम मेमोरी कहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेमोरी स्टोरेज. Memory is that unit of the computer where data and instructions are stored. The memory unit of the computer is made up of one or more chips placed on the motherboard. All the data is stored on it in the form of 0 and 1, which is called binary digits or bits. मेमोरी वो यूनिट है जहाँ पे हम डाटा को स्टोर रखते हैं, उसको डाटा और इंस्ट्रक्शंस को करते हैं, स्टोर करते रहते हैं। बेसिकली बाइनरी यूनिट्स होते हैं, दैट इज 0 and 1. Now, units of memory. Bit is the smallest unit of memory that a computer can process. In the computer, binary digits 0 and 1 are used to store data, the instructions. देखो, जो बिट है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मेमोरी की। हम इसको बाइनरी यूनिट्स में स्टोर करते हैं, दैट इज 0 and 1. These numbers are called bits. इन नंबर्स को कहते हैं हम बिट्स कहते हैं। Now, a group of 4 bits is called nibble and a group of 8 bits is called byte. जो group of 4 bits होता है उसे nibble कहते हैं और group of जो 8 bits होता है उसे कहते हैं byte कहते हैं। Like this, 1 kilobyte is equals to 10 to the power 2 to the power 10 is equals to 1024 byte. और 1 MB में 2 to the power 10 KB और 1024 KB। एक MB में कितनी KB होती है? 1024. Now 1 GB में कितनी होती है? 1024 MB होती है। एंड 1 टेराबाइट में कितनी होती है? 1024 GB एंड 1 पेटाबाइट में कितनी होती है? 104 TB. Now we start with next topic, that is type of memory. जैसे आपको मैंने बताया मेमोरी दो तरीके के होते हैं, वन इज प्राइमरी एंड देन सेकंड इज सेकंड। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो इंटरनल होती है, जैसे कि रैम हो गया, रैम दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी and ROM that is read only memory, and secondary memory is an external memory, जैसे आपकी CD drive हो गई, hard disk हो गई, all these are secondary memory. Let's start with types of memory. A computer memory is classified into primary memory and secondary memory. Primary memory, it is also known as main memory. Main memory is directly or indirectly connected to the central processing unit via memory bus. The CPU continuously reads instructions stored there and execute them as required. Example, RAM and ROM. जैसे आपको मैंने प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी होती है, ठीक है, डाटा को स्टोर करती है, ठीक है, और क्या करती है? जब हम चाहे उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है, और बेसिकली दो तरीके की होती है, दैट इज रैम एंड रोम. Now start with RAM, that is random access memory. It is called random access memory because any of the data in RAM can be accessed just as fast as one of the other. हम जितने फास्ट डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, उतनी तेजी से हम इसमें वर्क भी कर सकते हैं. It is used to write and read data from it. It is a volatile memory. When computer is off, all the information that has been stored on it is lost. ये बहुत volatile memory होती है। जैसे आप क्या करेंगे, आप काम कर रहे हैं और आपको कंप्यूटर किसी वजह से, बेसिकली ऐसा होता है, मोस्टली मतलब ऐसा होता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है थोड़ी देर बाद, तो क्या होता है, वो डाटा भी क्या होगा, जैसे कंप्यूटर ऑफ होगा डाटा वहां से लॉस्ट हो जाएगा, चला जाएगा. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम. व्हाट इज रैम एंड देन इट्स रैम. रैम क्या होता है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड दैट इज रैम क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. नाउ वी विल स्टार्ट विद रोम, रीड ओनली मेमोरी. This memory is used as a computer beginning to boot up. It is a non-volatile memory. When computer is off, all the information that has been stored on it
is not lost. ROM memory cannot be easily or quickly overwritten or modified. ठीक है, देखो इसलिए क्या होता है, ये नॉन वैलेटाइल होती है, मतलब जैसे आपका कंप्यूटर ऑफ होगा ये लॉस्ट नहीं होती, ये क्या होती है हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है। आप इसको जब भी दोबारा यूज करना चाहते हो आप इसे इंग्लिश स्टोर यूज कर सकते, ठीक है। Now there are three types of ROMs, that is PROM, EEPROM और EEPROM, ठीक है। PROM that is programmable read only memory and EEPROM is erasable program read only memory, and that is EEPROM, that is electrically erasable memory. Now we will start with PROM. All the programs are stored on the chip. Once it is used, we cannot wipe it clean or store something else. It can be programmed only under special condition. ये क्या होती है हमारी प्रोम होती है, इसको स्पेशल कंडीशन में ही यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आपको इसमें लगाया, आप उसको क्या कर सकते हैं, कोई चेंजेस में नहीं ला सकते। दैट इज ई प्रोम। वी कैन इरेज इट स्टोर्ड इंफॉर्मेशन बाय एक्सपोजिंग इट इज टू अल्ट्रावायलेट रेज। हम जो उसमें डाटा स्टोर है उसको इरेज कर सकते हैं अगर उसको हम किससे एक्सपोज कर रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। Now that is EEPROM, we can erase its stored information using electrical signal. That is EEPROM. इसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल से क्या कर सकते हैं, इसके डाटा को स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हम EEPROM कहते हैं। That is electrically erasable read-only memory. Now we will start with next topic, that is secondary memory. Data and the information are in different forms such as documents, photos, videos, animations, voices and sound. That data information can be stored in computer storage device. ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट फॉर्म होता है, वीडियोस हो सकता है, इमेजेस हो सकती है, कोई हमारा डॉक्यूमेंट हो सकता है, एनीथिंग किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली द कंप्यूटर प्रोग्राम्स व्हिच गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर कैन बी स्टोर्ड। जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स जिनसे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। Computer usually uses its input or output channels to access secondary storage and transfer the desired data using intermediate area and primary storage. It is not directly accessible by CPU. हम इसको directly access नहीं कर सकते CPU, ठीक है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट हो गया, वॉइस साउंड हो गया, हमारा वीडियो एंड एनिमेशन हो गया, फोटोज, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, these all are secondary memory. Now we will learn about some secondary memory. First that is hard disk. ये सब क्या है हमारी हार्ड डिस्क है, ठीक है। The hard disk drive is the main and the usually largest data storage device in a computer. A hard disk consists of magnetized platter and a moving metal head. इसके अंदर क्या होता है, एक मैग्नेटाइज प्लेटर होता है और एक मूविंग हेड होता है, ठीक है। बेसिकली सबसे बड़ी लार्जेस्ट मेमोरी होती है जो हमारे डाटा को स्टोर करती है। Hard disk speed is the speed at which content can be read and written on the hard disk, ठीक है। वो हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है वो स्पीड होती है जिसने तेजी से हम कंटेंट को लिख सकते हैं, ठीक है। Hard disk units come with a set rotation speed varying from 4500 to 4500 to 7200 RPM. Disk access time is measured in milliseconds. जो disk access time कितने मेजर होता है, milliseconds. Now we will study next secondary device, that is magnetic tapes. A magnetic tape is a thin plastic tape covered with a magnetic substance. It is used for recording sounds, images or computer data, etc. The magnetic tape which was used often in the past has now become obsolete. जो हम पहले मैग्नेटिक टेप का यूज करते थे कुछ भी साउंड वगैरह करते, लेकिन अब वो क्या हो गया, ऑब्सोलेट हो गई, वो खत्म हो गई, अब नई नई चीजें आती, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंडरी डिवाइस दैट इज फ्लॉपी डिस्क। ये क्या होती है हमारी फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क एंड जैब डिस्क। जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो 1.44 MB की होती है और जो जैब डिस्क होती है वो 2 GB की होती है। Now a floppy disk is a magnetic media device that can be used to store small files. It contains capacity of 1.44 MB. It is used to carry data because it is the external storage device, but it becoming obsolete. ये भी क्या होती है, obsolete होती है, धीरे-धीरे खत्म होगी। ये कितना डाटा स्टोर करती है, 1.24 GB, ठीक है। Now at present there are hard disks which are produced by using the same technology used to produce the floppy disks such as dipsticks and jazz.
जो टेक्नोलॉजी फ्लॉपी डिस्क बनाती थी वो दो चीज और बनाती है, दैट इज जैप डिस्क एंड जिप डिस्क। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया फ्लॉपी डिस्क तो 1.44 MB की होती है और जो हमारी जिप डिस्क होती है वो 250 की होती है एंड जैज वाली कितने की होती है 2 GB। Now, the capacity of these disks is greater than that of floppy disks, but they are not used often. जिनकी कैपेसिटी होती है वो फ्लॉपी डिस्क से ज्यादा होती है, लेकिन अब ये यूज नहीं होती। Now, let's start with next secondary unit device, that is CD-ROM, that is compact disc. It is commonly used storage device. It can store 600 to 750 MB data. ठीक है, ये कॉमनली यूज है। सीडी आपने देखा होगा, हमें कोई पिक्चर वगैरह या मोस्टली कोई हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करते तो हम सीडी में डलवा देते हैं। ठीक है, ये कितना डाटा स्टोर कर सकती है 600 to 750। डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो, मूवी एक्सेट्रा। किसी में भी, जैसे मैंने आपको बता दिया, आप रिकॉर्ड करवाते हैं वीडियो तो आप सीडी में डलवाते, वो किसी भी फॉर्म हो सकता है, वो इमेज भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकता है, कोई साउंड रिकॉर्ड भी हो सकता है। अ लेजर बीम इज यूज्ड टू रीड सीडी डाटा। जो हम डाटा को रीड कर पाते हैं वो किसकी हेल्प से कर पाते हैं, लेजर बीम की हेल्प से। Nowadays we got two types of CD, that is CDR and CDRW। ठीक है, दो तरीके की सीडीज होती है, that is CDR this type and CDRW। Now CDR, that is compact disk recoverable, in which data written cannot be changed or deleted। इसमें जो भी डाटा डाला है वो ना तो चेंज हो सकता और ना ही वो डिलीट हो सकता। और जो CDRW होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, इन विच डाटा कैन बी रीरिटन और डिलीटेड। इसमें हम डाटा को दोबारा से लिख सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, दैट इज डीवीडी, दैट इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। दिस इज आवर DVD. It is similar to CD but can store much more data. It can be recorded on one or both sides. There are two types, that is DVD-R. Data can be written once. DVD-RWC, retype. It ranges from 4.7 GB to 8। देखो ये सीडी की तरह होते हैं लेकिन ज्यादा डाटा स्टोर कर पाती है। डीवीडी में दो तरीके होते हैं, दैट इज DVD-R एंड DVD-RW। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है हमारी 4.7 GB to 8.5 GB। Now next topic, that is Blu-ray disc. It is similar to CD or DVD and holds the data up to 25 GB। ये CD और DVD की तरह ही कर रहती है लेकिन इसका जो डाटा होल्डिंग कैपेसिटी वो कितनी है 25 GB। Now a Blu-ray reader is required to use a Blu-ray disc। जिसका रीडर होता है वो उसको Blu-ray disc को पढ़ने के लिए यूज करा जाता है। Now that is USB flash drive। ये क्या है हमारे USB flash drive। ये पोर्टेबल होती है, स्मॉल होती है, आप जहां चाहे इसे वहां ले जा सकते हैं। Now a small portable flash memory card that plugs into a computer USB board and function as a portable hard drive। ठीक है, इसको मेमोरी कार्ड की तरह होता है, इसे आप क्या करते हैं अपने कंप्यूटर में प्लग करते हैं। देखा है हमें, अगर हम किसी से कुछ चीज लेके आए, कोई भी डॉक्यूमेंट, तो उसे अपनी पेन ड्राइव में करके लेके आते हैं और हम क्या करते हैं अपनी कंप्यूटर में लगाते हैं, फिर से आप कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, फ्लैश ड्राइव आर अवेलेबल साइज लाइक 1 GB, 2 GB, 32 GB एंड मोर। अलग अलग आते हैं, 1 GB की भी आती है, 2 की भी आती है और 32 GB की भी आती है। इट कैन इजी वे टू ट्रांसफर डाटा एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन। ये बहुत इजी वे, अगर हमें कहीं से भी डाटा स्टोर करना है या इन्फॉर्मेशन लानी है, बहुत इजी वे जिससे हम कर सकते हैं। Now memory card, an electronic flash memory card disk commonly used in consumer electronic device such as digital camera, MP3 mobile and small portable device। मेमोरी कार्ड क्या होता है, एक स्मॉल फ्लैश मेमोरी होती है, कार्ड मेमोरी कार्ड होता है जिसको आप देखा है हम अपने लैपटॉप, कैमरा और मोबाइल में भी लगाते हैं। अगर हमें अपनी मेमोरी को एक्सटेंड करना है, देखा है तो हम क्या यूज करते हैं अपने फोन में, मेमोरी कार्ड लगाते हैं जिससे हम और डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो वो क्या होता है हमारा मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड्स आर यूजुअली रीड बाय कनेक्टिंग द डिवाइस, कनेक्टिंग द कार्ड टू योर कंप्यूटर और बाय यूजिंग USB कार्ड। मेमोरी कार्ड को यूजुअली कब रीड पड़ता है जब अपने फोन में कनेक्ट करते हैं या अपने कंप्यूटर पे कनेक्ट करते हैं। जो डाटा से लेके आओगे वो अपने फिर फोन में या फिर लैपटॉप में जहाँ अपना मेमोरी कार्ड यूज करेंगे आप उसको पढ़ सकते। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।